children. Myself Sarita Chaudhary, TGT Science teacher from St. Joseph Public School, Town. In continuation of our chapter number 3 of science, which is synthetic fibers and plastics, students, our today's video's topic is plastic and the environment. You must have seen nowadays in the supermarkets or in grocery shops, whatever the foods, whatever the substances we purchase from there, जो भी चीज़ें हम वहाँ से खरीदते हैं, they hand out those purchased items to us in the form of in paper bags or in the fabric cotton bags, right? वो हमें पेपर बैग्स के अंदर या कॉटन बैग्स के अंदर कुछ मटेरियल्स को हमने जो हमने परचेज किए हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं. So what this is a conscious effort of our society to limit the use of plastic, ताकि हम प्लास्टिक के यूज़ को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर सकें. तो उसके ऑप्शंस की फॉर्म में दो शॉपकीपर्स दे आर यूजिंग द कॉटन बैग्स और पेपर बैग्स नाउअडेज. Students, you must have observed one more thing, like we keep on throwing the substances in our surrounding. हम कई बार जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स के पील ऑफ स्किन्स होती हैं, वी थ्रो देम हियर एंड देयर, वी थ्रो द पेपर्स ऑल्सो, राइट. सो सम ऑफ द कई बार हम प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ों को थ्रो करते हैं. सो अमंग ऑल दीज स्टफ्स, after we observe all these things for a few days or after a few months, अगर इनको हम चेक करें तो what we see, some of the substances they completely gets finished, वो पूरे गायब हो जाते हैं जहाँ पे उनको हमने थ्रो किया था. but some of the material they remain there for several of years, वो काफ़ी सालों तक उसी फॉर्म में वहाँ पे रहते हैं. so in this basis, on this basis, all the materials जितने भी मैटर होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, they are classified into two forms. The first one is biodegradable substances and the another one is non-biodegradable substances. Let's understand the meaning of these two words. First समझते हैं कि what are the biodegradable substances. As usual, let's break this huge word into two parts. The first part is bio. Bio means life, जहाँ पे life थी या life है, कभी रही होगी, right? And degradable means those substances which can be decomposed, जो degrade हो सकते हैं, decompose हो सकते हैं, finish हो सकते हैं. How? By certain action of nature. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, कुछ डिकम्पोजर्स ने उनके ऊपर अटैक किया और कुछ दिन के बाद अगर वो चीज़ पूरी डिग्रेड हो जाए, फिनिश हो जाए, उसमें जितने भी मटेरियल्स हैं वो डिकम्पोज होके दे रीच बैक इन द सॉइल, वो सॉइल में पहुंच जाते हैं, ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं, इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी. So that those kind of substances are called as biodegradable substances. तो हम समझ सकते हैं कि what are the biodegradable substances? Bio means life और degradable means जो degrade हो सके, जो decompose हो सके, जो finish हो सके. So those substances which can be decomposed by the action of living microorganisms, also called as decomposers, are called as biodegradable substances. Few examples of biodegradable substances are like fruits and vegetable skins, उनको हम biodegradable substances में consider करते हैं. Paper, cotton, they are the examples of the biodegradable substances. Let's talk about the non-biodegradable substances. Biodegradable we got to know कि biodegradable क्या होते हैं. Then what refers the non? Non refers कि वो substance जो biodegradable नहीं है. That means they cannot be degraded or decomposed by the action of microorganisms. So they are called as non-biodegradable substances. Right. What are the few examples of non-biodegradable substances? The plastic, as the decomposition of plastic, it takes several of years. बहुत सारे साल लग जाते हैं इसको decompose होने में. Metal is also the example of the non-biodegradable substances. Here we are having a table to understand what are the biodegradable substances and what are the non-biodegradable substances. Here in this table I am having two parts. The first part is types of waste. In the second part we are having time taken to degrade, and this time is the approximate time, around time हम यहाँ पे check कर रहे हैं. First of all, we are talking about the vegetable or fruit peels जो होते हैं, leftover जो फूड पार्टिकल बचा हुआ खाना होता है, इन सब चीज़ों के डिकम्पोजिशन में, डिग्रेडेशन में, इट टेक्स अराउंड 10 days.
सो 10 days में डिग्रेड हो जाएगा, कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. द नेक्स्ट वन इज अ पेपर. इट टेक्स अराउंड 20 days to degrade. Another the example of biodegradable substance. The next one is cotton items. They take around 3 to 5 months to degrade or decompose in the soil. They are also considered as the biodegradable substances. About the metallic items, जो मेटल से बनी हुई चीज़ें होती हैं, they are made up of the iron or any other metal, copper, tin, किसी भी चीज़ से बनी हुई चीज़ें हैं. They take around 100 to 500 years, as these substances are taking many more years to degrade or decompose. They are considered as non-biodegradable substances. The last one I am having here, plastics. And the decomposition of plastic, it takes around thousands of years. So, as we have already discussed, when the substances take thousands of years or hundreds of years to decompose, they are called as the non-biodegradable substances. Students, using the non-biodegradable substances can be a threat to our environment. ये हमारे environment के लिए काफ़ी ज़्यादा harmful होते हैं. Let's discuss few points with whom we can discuss, we can show, हम prove कर सकते हैं that how the non-biodegradable substances are harmful to us. We all have general practice to throw the plastic bags or plastic chips wrappers जो होते हैं इनके, उनको food items के wrappers को भी keep on throwing here and there. So when these non-biodegradable substances are thrown, first of all, when they are mixed in the soil, जब ये soil में जाएंगे तो वो डिग्रेड तो इजीली होते नहीं है. दे टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू डिग्रेड. सो मीनवाइल व्हाट दे डू, ये सब्सटेंसेस सॉइल में क्या करेंगे? दे विल डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, दे विल मेक द सॉइल इनफर्टाइल. सॉइल पोल्यूशन वो वहाँ पे कॉज करते हैं. इफ दे आर थ्रोन इन वाटर बॉडीज, दे कैन बी अ थ्रेट टू द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. अगर इनको किसी वाटर बॉडी में थ्रो करते हैं तो वो वहाँ पे रहने वाले प्लांट्स एनिमल्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वाटर पोल्यूशन क्रिएट करेगा. And beside all these things, if we try to burn these non-biodegradable substances, as a burning of synthetic materials, it takes a long time. बहुत slow process है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उसको burn होने में. And moreover that, if that gets burned, अगर वो जल भी जाता है, तो on burning, it produces some harmful poisonous gases. कुछ fumes, poisonous gases produce करते हैं. Which makes the air polluted, जो एयर को pollute करने का वर्क करेंगे, एयर पोल्यूशन कॉज कर देंगे. Another factors are, अगर ये प्लास्टिक्स हैं, अगर इनको ऐसे ही हमें थ्रो कर दिया है तो इन द रेनी सीजन और इन द व्हेन देयर इज द विंड ब्लोइंग, बहुत स्पीड से जब हवा चल रही हो, इन दोज कंडीशंस these plastic wrappers और plastic polythene bags they can chok the drains. अगर ये नालियों में जाते हैं तो उनको ड्रेन को बिल्कुल चॉक कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, वाटर इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा. राइट. When you must have seen that street animals, they also eat a lot of garbage available on the open areas, right? And along with the garbage, what those street animals do, they also eat the plastic stuff. Plastic से बनी हुई जो पॉलीथीन्स एंड बैग्स हैं, दे डोंट हैव द ब्रेन लाइक वी हैव, राइट. वो नहीं समझ सकते कि ओके दिस इज नॉट द सब्सटेंस शुड बी कंज्यूम्ड और दिस इज सब्सटेंस शुड नॉट बी कंज्यूम्ड. तो उन्होंने अगर प्लास्टिक के आइटम्स को कंज्यूम कर लिया, सो दीज प्लास्टिक आइटम्स दे कैन चॉक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम. वो उनके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को चॉक कर सकते हैं, तो प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली डेथ विल बी कॉज. और दीज सब्सटेंसेस जो उनकी एनिमल्स की, जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, काउज हैं, बफेलोज हैं, राइट, इन एनिमल्स की जो स्टमक है, इट डजंट हैव दोज बैक्टीरियाज विच कैन डाइजेस्ट द प्लास्टिक आइटम. जो प्लास्टिक आइटम्स को डाइजेस्ट कर सके, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. सो ये क्या होंगे? दे विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग इन देयर बॉडी. उनकी बॉडी में ही स्टोर होते रहते हैं प्लास्टिक आइटम्स एंड अल्टीमेटली दे कॉज डेथ ऑफ दोज एनिमल्स. So these are some factors which show that how harmful the use of plastic is to us. कितना हमारे लिए harmful होता है प्लास्टिक का यूज़. It is a problem for our environment. It pollutes our environment. ये soil pollution कर रहा है, water pollution कर रहा है, air pollution कर रहा है, right? So we should need to think some of the ways by which we can sort out a problem, जिससे हम अपने नेचर को, अपने एनवायरनमेंट को
सेव कर सके फॉर द फ्यूचर। सो हियर वी आर हैविंग द 5 R's प्रिंसिपल टू सेव आवर एनवायरनमेंट। ये 5 R प्रिंसिपल्स यूज करते हैं बेसिकली ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकें। What these 5 R's refer? ये 5 R's क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? These 5 R's represent reduce, reuse, recycle, recover and refuse. Let's discuss them in detail. What is the meaning of reduce? नाम से समझ में आ रहा है कि reduce means क्या है? We need to minimize the use of plastic as possible, as far as possible. जितना हो सके हम प्लास्टिक के यूज़ को मिनिमाइज कर दें, कम यूज़ करें। तो whenever we are going to supermarkets or grocery shops, so we can have our own paper bags or cotton bags, कपड़े से बने हुए हम फैब्रिक बैग्स को यूज़ कर सकते हैं for the purchasing purpose. Next is reuse. Re means दोबारा, right? Use मतलब यूज़ करना. So what is the meaning of reuse? The plastic materials which can be reused, they should be reused instead of throwing them after using for once. जो सब्सटेंसेस दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक से बनी हुई कुछ बॉटल्स होती हैं, कुछ कंटेनर्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। सिंपली बीइंग चिल्ड्रन, आप स्टूडेंट्स हो, राइट, एंड यू ऑलवेज यूज़ द पेन। आप पेन यूज़ करते हो, बॉल पेन्स यूज़ करते हो फॉर राइटिंग वर्क, अपने होमवर्क के लिए। तो बॉल पेन्स के अंदर जो रिफिल अंदर की फिनिश हो रही है, दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय यूजिंग अ न्यू रिफिल। तो उसके लिए पूरी पेन की बॉडी को हमें थ्रो करने की ज़रूरत नहीं है। So these are certain ways by which we can reuse the plastic materials. कुछ कप्स वगैरह अगर हैं तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर इन अ गार्डन ऑल्सो। उनको हम गार्डनिंग में, उनके अंदर प्लांट्स ग्रो करवाने में यूज़ कर सकते हैं, राइट। टॉकिंग अबाउट द थर्ड आर, दैट इज द रिसाइकल। री में बात कर चुके हैं, दोबारा साइकिलिंग मतलब फिर से रिसाइकिल करना किसी चीज़ को। So we have discussed in a previous videos about the thermoplastics. क्या होते हैं thermoplastics? Those plastics on heating can be molted, can be melt, जो melt हो जाते हैं, and they can be remolded to make different items, जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। एक बार हीट थी, वो मेल्ट हो गई, फिर से उनको दोबारा यूज़ कर लिया टू मेक दी डिफरेंट आइटम्स, ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। सो मटेरियल्स को क्या करना चाहिए? इफ़ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी, अगर कुछ पॉसिबल चांसेस हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी शुड हैव 2 टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। जो गार्बेज बिन्स होते हैं, गार्बेज कंटेनर्स हैं, वो हमें 2 टाइप्स के यूज़ करने चाहिए। फर्स्ट, दोज मटेरियल्स विच आर द बायोडिग्रेडेबल, जिनको हम डिग्रेड कर सकते हैं टू मेक मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, राइट, नेचुरल फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। एंड सेकेंड बिन शुड बी यूज फॉर द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, जो डिग्रेड नहीं हो रहे हैं, उनमें भी फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं थर्मोस्टेटिक एंड थर्मोप्लास्टिक। तो जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स हैं उनको पहले से हम अलग कलेक्ट करें एंड दे कैन बी सेंड इन द फैक्ट्रीज फॉर द रिसाइकलिंग पर्पस। बात करते हैं अबाउट द फोर्थ आर विच इज रिकवर। स्टूडेंट्स, रिकवर मीन्स क्या है? इट इज द कन्वर्टिंग द वेस्ट मटेरियल्स इनटू द रिसोर्सेज। अगर हम किसी वेस्ट मटेरियल को फिर से रिसोर्स में यूज कर लें तो दैट इज कॉल्ड एज द रिकवरिंग, उसको हम रिकवरिंग कहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिकवरिंग इज लाइक द वेस्ट बॉटल्स, जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, दोज आर ऑलरेडी यूज्ड, दे कैन बी यूज्ड टू मेक सिंपल प्लास्टिक बॉटल बोट। उनसे हम एक सुंदर सी ब्यूटीफुल बोट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स अबाउट द रिकवरी। द लास्ट वन इज द रिफ्यूज, एंड दिस इज अनदर वे टू मैनेज द प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने का एक और तरीका है। रिफ्यूज मीन्स क्या है? रिफ्यूज मीन्स जितना पॉसिबल हो, जितना हम उसको अवॉइड कर सकें यूज ऑफ प्लास्टिक्स को, उतना हमें ऑलरेडी अवॉइड ही करना चाहिए। डायरेक्टली से नो टू द यूज ऑफ प्लास्टिक्स इफ वी हैव एनी अदर ऑप्शन। तो हमें उनके ऑप्शंस को सर्च आउट करना है और जितना पॉसिबल हमें प्लास्टिक के यूज़ को अवॉइड ही करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो प्लास्टिक की बनी हुई कुछ लंच बॉक्सेस होती हैं, बॉटल्स होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कीपिंग द फूड आइटम्स इन देम कैन बी हार्मफुल, वो भी हार्मफुल हो सकता है। एंड एज दोज प्लास्टिक मटेरियल्स इफ दे आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, दे कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड, कि रिसाइकलिंग भी पॉसिबल नहीं है। So for those kind of plastics, it's better to say directly no to them. So in today's video, we discussed about the biodegradable and non-biodegradable substances, and we discussed the 5
hours principle which should be promoted by each and every citizen to save our environment and atmosphere. That's all for today's video. Thanks for watching.